start. So very good afternoon boys and girls. We have started with CA Foundation Economics जहाँ पे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं Theory of Demand and Supply. Theory of Demand and Supply में मैंने अब तक आपको पढ़ाया what is demand. Demand is constituted with three elements of desirability and willingness. Then we saw demand is expressed in terms of quantity, price and time. Then we saw various determinants of demand in case of price of a commodity, price of related good, taste and preference of the consumer, income of the consumer, expectations about the various factors and the other various factors which determine the demand for the commodity. After understanding the demand, determinants of demand, we saw the demand function where we saw demand is function of determinants of demand, where demand is dependent on determinants of demand. Lastly, we saw the law of demand. Under the law of demand, we saw Professor Alfred Marshall has written the or propounded the law of demand where he states as the price of the product increases, demand for the product decreases, as the price of the product decreases, demand for the product increases. Hence, there is inverse relationship between price of the product and its quantity demanded. Are we okay? Are you okay? This is what given in the law of demand. As per law of demand, there is inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. Due to this inverse relationship, the demand curve is downward sloping from left to right and the demand curve is having a negative slope. Then in the yesterday's lecture, we saw there are various rationales or reasons why the demand curve is downward sloping. There are various reasons why the demand curve is downward sloping, and then after learning that, we saw what are the exceptions to the law of demand. Exceptions to the law of demand are one which contradict the law of demand statement, where in the law of demand we have learned that as the price of the product increases, demand for the product decreases, as the price of the product decreases, demand for the product increases. This is what we have learned in the law of demand. But in exceptions to demand, what we could see is entirely contradicting to what is given in the law of demand, where the price of the product increases, demand for the product increases, where the price of the product decreases, demand for the product decreases, as in case of given goods, where there is direct positive relationship between price of the commodity and its quantity demanded. So this is all we have seen till date in our particular chapter and discussion. Does anyone have any sort of doubt? Does anyone have any sort of doubt? At the earlier part of the module only, you have some discussions regarding individual demand schedule and market demand schedule. Individual demand and market demand, ये दो पॉइंट है जो मैंने जानबूझ के स्किप किया है और स्किप किया था. इसका रीजन ये है कि पहले मैं चाहता था कि तुम पहले ये समझो कि डिमांड स्केड्यूल, डिमांड कर्व क्या है. एक बार तुम डिमांड कर्व समझ गए, फिर इसके बाद अब इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड समझाने में तुम्हारे लिए आसानी होगी, राइट? So after learning law of demand and how is the demand curve, now let's look into how is the individual demand and how is the market demand. Individual demand और market demand कैसे है? तो उसके लिए we are referring to this particular text which is given, right? The part of this particular text will be given to you. You have to just write it down in short and summarized manner in your own writings. इस ये जो particular part रहेगा individual demand और market demand, इसके अंदर आपको जो मैं ये टेक्स्ट के जो पेजेस भेजूंगा इसमें से आपको अपने हिसाब से नोट्स बनाकर लिख कर रखने हैं, राइट? सो आज का जो पार्ट है ये नोट जो है 3-4 पेजेस के मैं आपको सेंड करूंगा, इस पे से आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं. अभी ओके एंड फाइन? चलो शैल वी स्टार्ट डिस्कशन, राइट? डिस्कशन शुरू करते हैं. पहले समझते हैं डिमांड शेड्यूल. व्हाट इज शेड्यूल? Schedule is a tabular presentation of data, right? Now demand schedule means tabular presentation of demand. Then what will be demand schedule? Tabular representation of the demand data is called as the demand schedule. Yes or no? Yes or no, right? So first demand schedule यानी क्या? Demand schedule is nothing but the tabular presentation of the demand data which is given. Demand schedule is a tabular representation of the functional relationship between price and quantity demanded for a particular commodity. किसी भी कमोडिटी का प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप किसी टेबुलर फॉर्मेट में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय द डिमांड शेड्यूल. सो डिमांड शेड्यूल shows up the tabular representation of price of the commodity and quantity demanded. A demand schedule may be either individual demand schedule or market demand schedule. Demand schedule जो है individual demand schedule हो सकता है या market demand schedule हो सकता है. सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की. नाउ अंडर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वी आर ट्राइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट डिमांड और हाउ इज द डिमांड with respect to different quantities demanded at different price with respect to a single individual. With respect to a single individual. बेटा तुम मेरा इधर आओ, मास्क निकालो, यहाँ खड़े हो जाओ. तब ये हमारा दोस्त है आदित्य, राइट? नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिमांड बाय आदित्य, लेट्स से आदित्य मार्केट में अलग अलग प्राइसेस पे ओनियन खरीदता है, राइट? प्याज, राइट?
So these are the different prices we have and different quantity demanded. जानबूझ के इसलिए खड़ा कर रहा हूं आपके सामने ताकि आपको समझ में आए कंसेप्ट क्या है. अब हम किसका डिमांड समझने की कोशिश कर रहे हैं? अकेले आदित्य का, एक सिंगल इंडिविजुअल का हम डिमांड समझने की कोशिश कर रहे हैं. लेट्स से द प्राइसेस ऑफ ओनियन इज 50, क्वांटिटी डिमांडेड, लेट्स से क्वांटिटी डिमांडेड ही डिड इज 3 kgs. कितना क्वांटिटी डिमांड किया? 3 kgs. now prices is ₹50 per kg, right? the price is reduced to 30 rupees per kg. So as per law of demand, what should happen? There should be increase in demand. So Aditya has increased his demand from 3 kgs to 5 kgs. Agree? Agree? Yes or no? Right? Further, the price is reduced to 20 rupees per kg. Right? So he will further increase, because as the price decreases, demand increases. He increased the demand to 7 kgs. Furthermore, the price is reduced to rupees 10 per kg. Yes or no? Hi or na? Right? So his demand will be 10 kgs. Now see, we have a schedule already. We have a demand schedule in which we are trying to set up the relationship between price and quantity demanded. Now in this particular example which I have set, these are the different prices A, B, C and D. A, B, C and D. इसमें से ये आदित्य की क्वांटिटी डिमांडेड है. एट दीज डिफरेंट प्राइसेस आदित्य इज डिमांडिंग दीज डिफरेंट क्वांटिटीज, राइट? जहां पे प्राइस 30 था, आदित्य वाज डिमांडिंग 3 kgs. जहां प्राइस 30 था, आदित्य वाज डिमांडिंग 5 kgs. जहां पे प्राइस 20 हुआ, वहां पे आदित्य इज डिमांडिंग 7 kgs. जहां पे प्राइस 10 था, वहां पे आदित्य इज डिमांडिंग 10 kgs. है ना? यस और नो? राइट? अभी ये जो हमारे सामने स्केड्यूल आया है, क्या ये पूरे मार्केट में जितना ओनियन डिमांड कर रहे हैं, क्या वो दिखलाता है या सिर्फ एक इंडिविजुअल की डिमांड बताता है? एक इंडिविजुअल, जो हमारे सामने स्केड्यूल या टेबल हमने बनाया है, वो सिंगल आदित्य का क्या डिमांड है अलग अलग प्राइसेस पे वो दिखाता है. चिंता मत कर बेटा, मारूंगा नहीं, चिंता मत कर, डर मत. सो ये जो टेबल हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, ये सिर्फ यही बताता है कि अलग अलग दामों पर एक अकेला इंडिविजुअल आदित्य कितनी कितनी क्वांटिटी जो है प्याज की डिमांड करता है. है ना? राइट? सो कैन आई कॉल दिस डिमांड शेड्यूल एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? यस और नो? यस और नो? बिकॉज दिस डिमांड शेड्यूल बिलोंग्स टू अ सिंगल इंडिविजुअल हु इज आदित्य. ये डिमांड शेड्यूल एक सिंगल इंडिविजुअल को रिलेट करती है, जो कौन है? आदित्य है. है ना? सो कैन आई कॉल दिस demand schedule as individual demand schedule? Yes. So individual demand schedule is nothing but tabular presentation of demand of a single individual. You may set. Right? हो गया. तो मैंने यहाँ पे एक व्यक्ति को बुलाया, अलग अलग दाम लिए, अलग अलग दाम पे उसके अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड बता दी और उसका हमने एक शेड्यूल बना लिया. तो ये बन गया हमारा डिमांड शेड्यूल. अभी हमने डिमांड शेड्यूल का मतलब समझा. डिमांड शेड्यूल इज नथिंग बट टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. है ना? यस और नो? Yes or no? Yes or no? Right? Now this demand schedule belongs to a single individual in the market. Not compulsory that the same prices, the same will be the quantity which are demanded by Ganesh. Not required the same quantity will be demanded by Vishnu. Not necessary that same quantity will be demanded by Prem. At different prices, every other individual will demand different quantities of onions. Agree? Agree or not agree? Right? 50 रुपए प्रति किलो महंगे है, इसने 3 kg बाय किया है. विष्णु के घर पे शादी है तो विष्णु 10 kg बाय करेगा, और गणेश के घर पे सब छुट्टी पे गए तो गणेश बाय भी नहीं करेगा. या फिर उसको पूर्ति उसकी जितनी जरूरत है वो 1 kg बाय करके उसमें सफिशिएंट है. तो जरूरी है कि गणेश ने भी 3 kg लेना चाहिए या विष्णु ने भी 3 kg लेना चाहिए. जिसकी जैसी जरूरत रहेगी वैसा वो लेगा. राइट? तो गणेश जितना इंडिविजुअली डिमांड कर रहा है वो क्या होगा? उसका इंडिविजुअल डिमांड. विष्णु जितना इंडिविजुअली डिमांड कर रहा है वो उसका क्या होगा? इंडिविजुअल डिमांड. अब हमारी एग्जांपल में अलग अलग प्राइसेस पे आदित्य जो अलग अलग क्वांटिटी डिमांड कर रहा है वो उसकी क्या है? इंडिविजुअल डिमांड. सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिमांड? द डिमांड बाय इंडिविजुअल ऑफ अ कमोडिटी, डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ इंडिविजुअल बाय अ इंडिविजुअल एट डिफरेंट प्राइसेस इज नथिंग बट द इंडिविजुअल डिमांड. क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल एट डिफरेंट प्राइसेस इज नथिंग बट योर इंडिविजुअल डिमांड. और उस इंडिविजुअल डिमांड का हमने यहाँ पे स्केड्यूल बना लिया. अब स्केड्यूल बनाने के बाद इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, स्केड्यूल बनाने के बाद मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊं, सो दिस विल बी 10,
20, 30, 40 and 50, right? Then again this will be 2, 4, 6, 8 and 10. 2, 4, 6, 8 and 10. See at the points, 50 था तब कितना है 3 है, फिर उसके बाद कितना है 30 है तब 5 है, फिर उसके बाद 20 है तब कितना है 7 है, और 10 है तब कितना है 10, right? So this is the points plotted on the basis of what are the different quantities he has demanded at different price. So I have joined these particular points and I have got a curve which is called as DD or demand curve. Now how is the demand curve? Demand curve is downward sloping from left to right, but this demand curve belongs to a single individual. This demand curve belongs to a single individual. Who is single individual? Aditya. Aditya is the single individual जिसे ये demand curve belong करती है, हाँ या ना? आदित्य इज द सिंगल इंडिविजुअल जिसे ये डिमांड कर अप्लाई होती है. क्या ये मार्केट की सभी डिमांड की कर्व है या सिर्फ आदित्य की है? सिर्फ और सिर्फ आदित्य की है. सो कैन आई कॉल दिस डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व? यस और नो? Can I call this demand curve as individual demand curve? And again, how is the individual demand curve? Same, it is downward sloping from left to right. The only characteristics being the individual demand curve depicts the demand for a commodity by a single individual at different prices. Are you getting my point? So individual demand curve is same. The individual demand curve is also downward sloping from left to right. But the only thing here is the individual demand curve depicts the relationship between price of the commodity and the quantity demanded with respect to a single individual. Are we okay and fine? Is everyone okay? सबको individual schedule, individual demand समझ में आया? Yes or no? So we just have a reading of the text. Now individual demand schedule. Schedule का मतलब क्या होता है? Tabular presentation of data. जिस डिमांड स्केड्यूल का टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है और अगर वो डिमांड स्केड्यूल किसी एक इंडिविजुअल को कोरिलेट करता है तो उस डिमांड स्केड्यूल को हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल. जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, ये क्या है मेरा? जो मैंने यहाँ पे बनाया ये मेरा क्या है? ये मेरा डिमांड स्केड्यूल है. लेकिन ये डिमांड शेड्यूल किससे रिलेट करता है? सिर्फ और सिर्फ आदित्य से कोरिलेट करता है. तो इस डिमांड शेड्यूल को क्या बोलूंगा मैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. अभी ओके? अभी ओके गाइस? यस और नो? राइट. नाउ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. Individual demand is the quantity of the commodity demanded by a single consumer at a price at the given price during a given period of time, because we express the demand in terms of quantity, price and time. Individual demand schedule is a tabular presentation of showing different quantities of commodities that an individual consumer is prepared to buy at various prices over a period of time. This can be explained with the help of individual demand schedule as given below. Let's say this is again the individual demand schedule of Aditya. Now price of a commodity X. What is the commodity we have considered? Onion. 10 rupees, 8 rupees, 6 rupees, 4 rupees, 2 rupees. These are the different prices of onion. And the different quantities which Aditya has demanded is 1, 2, 3, 4, 5. What we can see, the prices are reducing here from 10 to 2. The demand is increasing from 1 to 5. Agree? So is the individual following the law of demand? Yes. So this particular demand schedule is a demand schedule of a single individual. इसीलिए इस डिमांड शेड्यूल को हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, वेरी इजी. जस्ट पे अटेंशन. इसमें कुछ डिफिकल्ट है? डू यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट? श्रेया समझ में आया? राइट. यहाँ के बैठो, उधर बैठो मत, बोला ना आपको कितनी बार. यहाँ के बैठो. चलो चलो. Now the table 3.1 shows different quantities of commodity X purchased by an individual consumer at various prices. It can be observed less quantity of the commodity is demanded at rising prices and more quantity is demanded at the falling prices. It indicates the inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded. देखो यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर की तरफ जा रहा है. One is moving downwards, another moving upward. So how is the relationship? Inverse relationship. How is the relationship? Inverse relationship. And we all know whenever we have inverse relationship, how will be the curve? The curve will always be downward sloping from left to right.
So no magic. We all know that individual demand curve will always be downward sloping from left to right. Agree? Agree? Does everyone agree? Yes. Now individual demand curve. Now the individual demand curve is a graphical presentation of the individual demand schedule. जो हमने स्केड्यूल बनाया है उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. सो ये फिगर के अंदर जो ऊपर हमने टेबल बनाया है उसी के ऊपर से बनाया है. 10 है तो 1 है. जैसे प्राइस कम होता गया वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती गई हमारी. हाँ या ना? फिर इन सभी पॉइंट्स को जोड़ के हमने जो कर्व बनाया उसको नाम क्या दिया हमने? डीडी डिमांड कर्व. नाउ दिस डिमांड कर्व इज अ इंडिविजुअल डिमांड कर्व. And as we saw in the individual demand schedule that there is inverse relationship between price of the commodity and the quantity demanded, there is no doubt that the individual demand curve also has to have a downward slope. That is, the individual demand curve is also downward sloping from left to right. Now, this downward sloping individual demand curve is due to the inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. Is everyone clear? Is everyone clear? Is everyone clear? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ बोल. यहाँ पे हम रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी में है तो कांस्टेंट रहने का सवाल ही नहीं आया ना. बाकी कांस्टेंट है उसके अंदर अलग अलग जो है उसको ही ले रहे हैं हम कंसीडर कर रहे हैं. कांस्टेंट कैसा रहेगा? डिमांड चेंज होता रहेगा प्राइस के साथ. वो दो वेरिएबल तो है कंसीडरेशन में. पूरा गलत सवाल है, ऐसा सवाल मत पूछो. ठीक है? द एंटायर क्वेश्चन इज रॉन्ग इन इटसेल्फ. इन फिगर 3.1 x axis represents the quantity demanded and y axis represents the price of the commodity. The demand curve DD slopes downward from left to right, indicating an inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded. देखो शीला आंटी, कल बहुत बोला था तुम्हारे को शीला आंटी लो मिलवा दिया. अब ये क्या है? टमाटर है कि एप्पल है? एप्पल सॉरी, राइट. ये रामू काका है. अब रामू काका जो है शीला आंटी को एप्पल बेच रहे हैं. नाउ एट वेरियस प्राइसेस देयर विल बी वेरियस क्वांटिटी ऑफ एप्पल विच विल बी डिमांडेड बाय शीला आंटी टू रामू काका. Now this different quantity at the different price is put up in a schedule that will give us a individual demand schedule of Sheila aunty. And the individual demand curve of Sheila aunty will again be downward sloping from left to right as we have seen above. Are we clear? समझ में आला कंसेप्ट? समझ में आला कि नहीं आला? समझ में आया क्या? आया क्या बेटे? आया क्या? आया क्या? आया क्या? आया. चलो अगला पॉइंट है मार्केट डिमांड शेड्यूल. ना हाउ इज मार्केट डिमांड शेड्यूल डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? वेरी सिंपल. रामू काका एप्पल बेच रहे. एप्पल बेचते हो अकेले शीला आंटी तो उनकी कस्टमर नहीं है. शीला आंटी के साथ हम सब लोग भी जो है रामू काका के कस्टमर है. सो एज आई सेड एट डिफरेंट प्राइसेस एवरी इंडिविजुअल विल डिमांड डिफरेंट क्वांटिटी एज पर हिज रिक्वायरमेंट. यस और नो? जैसे कि हमने आदित्य के एग्जांपल में देखा कि जब प्राइस 50 था तो आदित्य ने 3 kg डिमांड किया. जब 30 था तो 5 kg किया. जब 20 था तो 7 किया. तब 10 था तब 10 किया. अब मान लो मार्केट में प्याज लेने वाले और भी लोग हैं. एक है गणेश, एक है विष्णु. Ganesh and Vishnu are also two more individuals who also buy onion in the market. Let's say पूरे मार्केट में ये तीन ही लोग हैं जो प्याज खरीदते हैं. फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस लेट अस कंसिडर. मार्केट डिमांड को समझने के लिए ये अज्यूम करते हैं कि आदित्य, गणेश और विष्णु ये तीन लोग हैं जो मार्केट में ओनियन की डिमांड करते हैं. नाउ वी गॉट टू डिटरमाइन द मार्केट डिमांड बॉयज. क्या? मार्केट डिमांड. मार्केट में कोई चीज की डिमांड करने वाला एक अकेला इंडिविजुअल होता है या सभी लोग होते हैं? तो मार्केट में जितने भी लोग हैं
वो कलेक्टिवली जब किसी कमोडिटी की कोई क्वांटिटी डिमांड करते हैं उसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड। सो सिंपल भाषा में हर एक इंडिविजुअल की जो डिमांड है उन सभी इंडिविजुअल की डिमांड का अगर हम समेशन ले, एडिशन ले, तो जो फाइनल क्वांटिटी होगी दैट विल बी द मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस। यहां पे मैं लिखने से अच्छा हम वापस यहां पे जो टेक्स्ट में दिया है उसी को रेफर करते हैं। नाउ मार्केट डिमांड शेड्यूल, as I told you, the demand schedule which sets up the relationship between price of the commodity and quantity demanded with respect to a single individual Aditya will be called as individual demand schedule. But if a demand schedule is setting up a relationship between price of the commodity and quantity demanded with respect to all the individuals taken together or in aggregate of a market, it will be called as मार्केट डिमांड शेड्यूल। सिंपल भाषा में इंडिविजुअल डिमांड में हम एक व्यक्ति अलग अलग दाम पे क्या क्या डिमांड करता है उसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो वो होगा इंडिविजुअल डिमांड। जब हम मार्केट में सभी लोग मिलकर एक दाम पे जितनी क्वांटिटी डिमांड करते हैं, एक दाम पे जितनी क्वांटिटी डिमांड करते हैं उसका अगर एग्रीगेट बनाकर अगर एक टेबल बनाते हैं तो उस टेबल को हम क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल। कैसा बनता है अभी आगे हम देख लेंगे। मार्केट डिमांड इज टोटल डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर्स एट अ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। Market demand schedule is a tabular representation showing the different quantities of commodity which all the consumers, यहाँ पे individual बोला है क्या, नहीं, क्या बोला है, all the consumers are prepared to buy at various prices over a given period of time. It is obtained by horizontal summation of the demand of all the consumers at various prices. It also indicates an inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded. This can be explained with the help of following market demand schedule. Right? Now let's say ये हमारा market demand schedule है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स क्या है हमारा, ओनियन, बरोबर है क्या, हाँ या ना। ये कौन है हमारा, आदित्य, ए फॉर आदित्य। ये कौन है हमारा, गनु, गणेश, जी फॉर गणेश एंड आई फॉर विष्णु। सो इट इज ए प्लस जी प्लस आई, आदित्य, गणेश एंड विष्णु। अभी हमने क्या अज्यूम किया कि मार्केट में ये तीन लोग ही है जो ओनियन को डिमांड करने वाले हैं। एज आई सेड, अगर 10 जब प्राइस है तो हमारा आदू बेबी क्या करता है, आदू बेबी 5 किलो ओनियन डिमांड करता है। व्हाट इज आदू बेबी डूइंग, आदू बेबी क्या कर रहा है, जब प्राइस 10 है, जब प्राइस 10 है, जब प्राइस 10 है तो वो कितनी डिमांड कर रहा है, 5 kgs की। Now the point here is, what about गणेश? क्या ये जरूरी है कि गणेश भी 5 kg ओनियन लेगा, नहीं। आदित्य के घर पे आदित्य है, आदित्य के पापा है, मम्मी है, भाई बहन है, बेटा बहन है, 4 लोग ही है, राइट। और अभी लॉकडाउन के वजह से गणेश के घर पे गणेश है, गणेश के काका है, गणेश के ताया है, फूफा है, अत्ता है, मामा है, चाचा है, सब आए हुए हैं। तभी परिवार में लंगर लगा है, तब लंगर के चलते प्राइस वही है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड गणेश की थोड़ी ज्यादा है। वो कितनी है बेटा, 10। विष्णु के घर पे तो शादी है, उसकी है किसकी है वो मालूम नहीं, लेकिन शादी है। तो अब विष्णु के घर पे शादी है तो बेटा विष्णु के घर पे तो सबसे ज्यादा लगेगा, भंडारा लगा है, शादी माने भंडारा है। हाँ, कोई भी आन खा के जाओ। हमारे इंडियन वेडिंग ऐसे से 2-4 आते मस्त हैंडसम हैंडसम तैयार होके आते खा के चले, तो पता भी नहीं लगता। हर शादी में आते खा के जाते हैं मेहमान, राइट। सब विष्णु ने कितना डिमांड किया है, 15 kgs। कितना डिमांड किया बेटा, 15 kgs, राइट। अब मुझे बोलो, ये जो 30 आया है ये कैसा आया, ए प्लस जी प्लस आई। आदित्य की क्वांटिटी कितनी है, 5। गणेश की कितनी है, 10। विष्णु की कितनी है, 15। पूरे मिलाकर कितने हुई, 30। सो कैन आई से
30 is the quantity demanded by all the individuals in the market at the price of rupees 10 per kg. Yes or no? Yes. So what is 30? 30 denotes the entire quantity demanded by all the individuals in the market at the given price of rupees 10. At the given price of rupees 10 is the quantity demanded of 30 kgs by all the individuals in the market. Agree? Now the price reduces to 8. As the price decreases, demand increases. अब फिर से मुझे बोलो, जितनी क्वांटिटी आदित्य बढ़ा रहा है जरूरी है कि गणेश उतना ही बढ़ाएगा? Is it compulsory? No. No doubt he will increase, but will the three increase in the same proportion? No. They will increase in their own proportions. So इसीलिए जब प्राइस कम हुआ तो आदित्य ने 5 किलो की जगह 10 किलो लेना चालू कर दिया, गणेश ने 10 की जगह 15 कर दिया, और विष्णु ने 15 की जगह कितना कर दिया? 20. अब तुम बोलोगे सर यहाँ 5 बढ़े, यहाँ रैंडमली लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ रैंडमली लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, राइट? सो अब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी हुई? 45. So can I say 45 is the market demand of onion at the price of rupees 8 per kg? हाँ या ना? Because this 45 denotes the quantity demanded by all the individuals in the market at the given price of rupees 8. Agree? Agree? Agree or not? Next price reduces to 6. Quantity demanded by Aditya is 15, Ganesh is 20, and Vishnu is 25. Now what is the total quantity? 60. 60 is the market demand for onion at the price of rupees 6, right? Then again price further reduces to 4. It is 20, 25, 30. अभी एग्जाम्पल में प्रोपोर्शनेट दिया है तो ये मत समझना कि प्रोपोर्शनेटी छोटी है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे अभी लास्ट में समझ लो 2 है तो अभी आदित्य ने कितना बढ़ाया है? 25. ऐसे भी हो सकता है वो 22 हो सकता है, गणेश ने 30 किया वो 28 भी हो सकता है, विष्णु ने 35 किया तो 36 भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ये अज्यूम किया है कि तीनों भी एक साथ एक जितनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं होता, राइट? कम दाम होने के बाद मान लो गणेश को लगता है 10 किलो का 1-2 किलो एक्स्ट्रा लेना है, इसलिए घर में और एक अचानक से मेहमान आने लगे तो पहले जितना हो सकता है उससे डबल क्वांटिटी लेना चालू कर दें। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट सिनेरियोज एंड कंडीशंस, राइट? बट अल्टीमेटली ये हम क्लियर देख रहे हैं कि तीनों भी इंडिविजुअल लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एज द प्राइसेस आर डिक्रीजिंग, क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीजिंग, हाँ या ना? तीनों भी सिनेरियो में, यस और नो? तीनों भी सिनेरियो में मार्केट के अंदर सभी इंडिविजुअल अपनी डिमांड बढ़ा रहे हैं। तो जब प्राइस 2 था, आदित्य की क्वांटिटी 25, गणेश की 30 और विष्णु की 35। सो टोटल डिमांड कितनी है हमारी? 90। नाउ लुक एट द टेबल, लुक एट द टेबल केयरफुली। गायत्री, लुक एट द टेबल केयरफुली। टेबल की तरफ ध्यान से देखो। अब टेबल में मैं जो 2 कॉलम बोल रहा हूं उसको ठीक तरह से देखो। वन इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वन इज market demand. So out of this demand schedule, can I say this demand schedule sets up the relationship between price of the commodity and the market demand of the quantity at different prices at a given period of time? Yes or no? So these are the different demand or market demand by all the individuals in a market at a given price during a given period of time. हाँ या ना? हाँ या ना? हमने क्या अज्यूम किया कि मार्केट में 1, 2, 3 ही लोग हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तो तीनों भी लोगों की हमने डिमांड ले ली और यहाँ पे मार्केट डिमांड निकाल लिया। ये डिफरेंट प्राइसेस है। सो डिफरेंट प्राइसेस, these are the different market demands by all the individuals living in the market, and this is the tabular representation of same. So this particular demand schedule is hence called as market demand schedule. समझो, मार्केट डिमांड स्केड्यूल कुछ भी नहीं है, इंडिविजुअल डिमांड का समेशन है।
ये मेरी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, ये और ये मिला के एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनी, ये और ये मिला के एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनी, और ये तीनों को जोड़ के जो फाइनली बना है वो मेरा क्या बना है, मार्केट डिमांड शेड्यूल. इज इट ओके? इज इट ओके? नाउ वी गॉट टू ड्रॉ द मार्केट डिमांड कर्व. अब हमें क्या ड्रॉ करना है बेटा, मार्केट डिमांड कर्व. सबसे पहले तो इस शेड्यूल को ऑब्जर्व करो, कर्व की तरफ अपन बाद में जाएंगे. बिना कर्व ड्रॉ करे मुझे बताओ कि मार्केट डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होगा, क्योंकि जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे मार्केट डिमांड बढ़ रहा है. बढ़ रहा है ना? जैसे मार्केट में प्राइस कम हो रहा है वैसे मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है. ओ, जैसे मार्केट में प्राइस कम हुआ है वैसे मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है. सो ये बढ़ने की वजह से देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड मार्केट डिमांड. As there is inverse relationship between price of the commodity and market demand, inverse relationship always has downward sloping curve. So without even looking into the diagram, what we can conclude that the market demand schedule is also downward sloping from left to right. Yes or no? Agree or don't agree? Agree. तो अभी जब हम मार्केट स्केड्यूल बनाए, मार्केट की कर्व बनाएंगे, मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे बेटा, तो हमें जो ध्यान रखना है ये है अलग अलग प्राइजेस और ये है अलग अलग डिमांड. इन दोनों को कंसीडर करो. टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 4, 5 सॉरी, इन 1 2 3 4 5 या टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 5 को कंसीडर करो, पॉइंट्स को प्लॉट करो. जो कर्व आएगा वो कौन सा डिमांड कर्व होगा बेटा, मार्केट डिमांड कर्व. हाँ या ना? सो कैन आई से द मार्केट डिमांड कर्व इज अ समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व. क्योंकि गणेश की डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व, विष्णु की डिमांड कर्व, आदित्य की डिमांड कर्व, इन तीनों को प्लस प्लस कर दिया तो मार्केट डिमांड कर्व. कहना है इसे प्लस 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 इज इक्वल टू डाउनवर्ड. सो मार्केट डिमांड कर्व इज नथिंग बट प्लस प्लस ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व. यस और नो? हाँ या ना? हाँ. So market demand curve is a summation of all individual demand curves, and the market demand curve is also downward sloping from left to right. This downward sloping market demand curve is due to the inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. हाँ या ना? चलो कंसेप्ट हुआ खत्म. मार्केट डिमांड कर्व. The concept is market demand curve. Graphically, the market demand curve is the horizontal summation of the individual demand curves. Horizontal summation. ये देखो जोड़ दिया तो ऊपर की क्या बनी हमारी, ये इंडिविजुअल आदित्य, इंडिविजुअल गणेश, इंडिविजुअल विष्णु, ये क्या बना हमारा मार्केट डिमांड कर्व. तो ये एक हॉरिजॉन्टल एडिशन है तीनों कर्व का. समझ में आया? ऐसी कर्व, ऐसी कर्व, ऐसी कर्व, तीनों को जोड़े तो चौथी किस बनी, ऐसी बनी. तो उसको कैसा बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल एडिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स. इज इज ओके? ओके, चलो आ जाओ. इट इज बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड शेड्यूल. द डिमांड कर्व इज रिप्रेजेंटेड एज. अभी देखो हमने मार्केट डिमांड कर्व बनाई है. अब इस मार्केट डिमांड कर्व में बनाते वक्त हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, प्राइस. प्राइस हम कहां से लेंगे, ये प्राइस 10, 8, 6, 4 एंड 2 बरोबर. अब क्वांटिटी डिमांडेड कहां से लेंगे हम, मार्केट डिमांड लेंगे 30, 45, 60, 75, 90. अग्री? अग्री और नॉट? तो अभी हम इसको प्लॉट करेंगे. जब 10 था तो मार्केट डिमांड कितनी थी बेटा, 20. फिर बाद में ये जब 8 था तो वो हुआ 40, 6 है तब बना 60, 4 है तब बना 70, और जब 2 हो तो कितनी बनी वो 90. यस और नो? नाउ these are the different quantity demanded in the market by all the individuals in the market at the given price at a given particular period of time. हाँ या ना? अब मैं डिमांड कर्व बनाने जा रहा हूं. ये आ गई मेरी डिमांड कर्व. नाउ दिस डिमांड कर्व इज डिनोटिंग द डिमांड. इज इट डिनोटिंग इंडिविजुअल डिमांड बेटा, और इज इट डिनोटिंग मार्केट डिमांड? It is denoting market demand. So this is nothing but a market demand curve. How is the market demand curve?
The market demand curve is downward sloping from left to right. This downward sloping market demand curve is due to the inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded by all the individuals in the given market. समझलं का? Market demand खत्म, concept खत्म. Is it okay? हाँ है ना? अभी ओके एंड फाइन, अभी ओके एंड फाइन. यहाँ पे हम खत्म करते हैं ये वाला कंसेप्ट. In the figure 3.3, x-axis represents the market demand and y-axis represents the price of the commodity. The market demand curve DD slopes downward from left to right, indicating the inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. देखो फिर से वही है रामू काका, राइट? एप्पल कौन बेच रहा है? एप्पल कौन बेच रहा है? रामू काका, सिंगल सेलर. ओके, बट नाउ जो बायर था, क्या अब इंडिविजुअल बायर है क्या? नहीं. पहले वाले केस में इंडिविजुअल बायर थी शीला आंटी, वो यहाँ पे दिखाई दे रही, देखो. यस और नो? यस और नो? तो बताओ ये कौन है अब? जूली. जूली देखो, पहली शीला, दूसरी जूली, ये मुन्नी, ये बदनाम, ये ही. शीला, जूली, मुन्नी बदनाम हुई. बरोबर है? हाँ ना? शीला, जूली, मुन्नी बदनाम हुई और शीला, जूली, मुन्नी बदनाम हुई और रामू काका, रामू काका झंडू बाम हुए. तो ये कौन है हमारा? बोलो ये कौन है? सही पकड़े हैं. ये आदित्य. ये कौन है? गणेश. ये कौन है? इसनो. समझे? समझे? अब एप्पल जो है, अब एप्पल जो है कौन कौन खरीद रहा है? शीला, जूली, मुन्नी बदनाम हुई, गणेश, इसनो एंड आदित्य. रामू काका तो बेच रहे हैं बेटे, रामू काका तो बेच रहे हैं बेटा. इतने सारे लोग मिलकर एप्पल खरीद रहे हैं, तो सभी लोग जो अलग अलग दाम पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांड करेंगे, तब उनका हम मार्केट डिमांड को बनाएंगे. तो वो क्या देगा हमें? मार्केट डिमांड को. और मार्केट डिमांड को कैसा बेटा? हाउ इज द मार्केट डिमांड को? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्लियर है क्या? और क्लियर? और क्लियर? Crystal clear? Yes or doubt, my dear guys? Yes, we'll take 2 minutes break. कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है. यस, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए. एंटरटेनमेंट में कराओके में मैं आपके लिए गाना प्ले करूंगा. सभी लोगों को गाना है. यस, लेट्स प्ले. 1 2. प्लीज बी ए स्पोर्ट. और अपने सुर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, भय मत जाना. एकदम ऊंचे वाले सुर लगाने की कोशिश मत करना, नीचे वाले सुर लगा लेना. Yes, please maintain silence. एक नंबर मचाएंगे, दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ. सब मुझे भाव तेरे, फिर भी तुझे मना रहा हूँ. सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ. तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं घर पे मना रहा हूँ.
वजन तेरी थोड़ी घटा रहा हूँ, तुझे लीन बॉडी पसंद है, मैं हेल्दी खाने चबा रहा हूँ, सुनने में आया कि लंदन में रहती है, अभी के अभी जाके पहले टिकट कटा रहा हूँ। Everyone has to sing, huh? It's not alone I have to sing. Otherwise, stop this. तू तो रास्टिक है, सिचुएशन बड़ी ड्रास्टिक है, तेरा स्माइल बहुत हार्ड, बाकी सब तो प्लास्टिक है, दूर खड़ी अच्छी लग रही नहीं भी तू मेरे पास ठीक है, हाथ तेरा क्या बोलो रे, गा रहे हो गया। रहने दो, अभी मैं मेरे हिसाब से गाऊंगा। हाँ अब बेटा तुम बोलो ही मत वरना ये मारेंगे हम। जान लो मैं गाना गाता हूँ, सब लोग अगर तुम्हें मन करे तो गाना गा लेना साथ में, वरना थोड़ा सा आगे कराएं। हाँ कौन सा? हाँ कितना बड़ा है, यहीं देख लिया टाइम कितने आया। यस वेट, यस प्लीज मेंटेन साइलेंस। यस ठहर जाओ दिल ये समझ जाए, कैसे तुम्हारे का करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आंखों में तुमको भरूं, तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। Yes everyone, I stop within a half song, सभी लोगों के साथ में गाना है। रहती रहती नहर नदियाँ सी और दुनिया में, मेरी दुनिया तेरी चाहतों में ढल जाती, तेरी आदतों में, अगर तुम साथ हो, तेरी नजरों में तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। ला 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 La 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 la. चलिए, so after a small and short break, we are back again with our concepts. आगे का जो point है regarding the expansion of demand, the contraction of demand, the extension of demand, the decrease in demand. These are all the points which we have to look into. Increase in demand, decrease in demand, expansion of demand and contraction of demand. बेटा एसी बंद कर, फैन चालू कर, एसी बंद कर, हऊ बंद कर। हाँ
जब भी वहां से फैन वगैरह कुछ बंद करो तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि अचानक से तुम यहाँ पे का कनेक्शन है तो डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे ये कंसेप्ट शुरू करते हैं। जो मैंने अभी पढ़ा है मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, डज एनीवन हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? यस, डज एनीवन हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? यस एंड डाउट? एनी डाउट? So my dear friends, we have concluded the discussion on the market demand and individual demand. Market demand और individual demand के ऊपर का हमारा discussion जो है वो complete हुआ है. Now let's move on to the next point of discussion, that is the changes in the demand. We all know there are various determinants of demand. Yes or no? There are various determinants of demand. Agree? हाँ या ना? हाँ या ना? Due to the changes in demand, due to changes in determinants of demand, there are changes in demand curve. जैसे जैसे determinants इफेक्ट करेंगे डिमांड को, हमारा डिमांड चेंज होता जाएगा, हाँ या ना? और जैसे जैसे हमारा डिमांड चेंज होगा वैसे वैसे हमारा डिमांड कर्व का जो कर्व है वो भी चेंज होता रहेगा, हाँ या ना? We know that there are various factors, there are various factors due to which the demand changes. Demand changes due to changes in price. Agree? Agree or not? Demand changes with the change in the income of consumer. Agree? Yes or no? Demand changes with the changes in the taste and preference of the consumer. Agree? Demand changes with the changes in the expectations about the consumers. Agree? Demand changes with the other factors. Agree? Right? Now there are various changes in demand due to the determinants of demand. Now out of these determinants of demand, what could be the changes in the demand and demand curve we have to learn in this particular part. Now in this particular part, we are going to understand the various variations in the demand. We are going to understand the various variations or changes which are brought into the demand for a commodity. Now we have seen that there are several factors. There are several factors or several determinants of demand. जिसमें पहला क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. पहला पॉइंट क्या है? जब हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं बच्चों, तो डिटर्मिनेंट्स में एक क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अग्री? हाँ या ना? और प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़कर अदर फैक्टर से. अग्री? हाँ या ना? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, अदर फैक्टर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. अग्री? राइट? नाउ अंडर द वेरिएशंस ऑफ डिमांड वी गॉट टू लर्न what are the changes in the demand curve, or what are the changes in the demand due to several factors, but they have to study it and classify under different headings. When we understand the changes in demand due to the variable price, whenever we understand the changes in demand due to variable price, we have to learn it under the two headings of first, expansion of demand. Expansion of demand, and second, contraction of demand. Variations in demand, that is expansion of demand and contraction of demand, can be seen as the changes in demand due to factor that is price. Due to factor that is price. So whenever we say when the price of the product increases, demand for the product decreases. When the price of the product decreases, demand for the product increases. तो ये जो इंक्रीज डिक्रीज ऑफ प्राइस की वजह से जो डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसे हम आइदर एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं, आइदर हम उसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं. क्या कहते हैं हम उसे? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और हम उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. जब प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम होती है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या एक्सपांड हो रहा है? You understand the English word meaning of expansion and contraction? Expansion means to expand. Yes. Contraction means to contract or to narrow. Right? So, when the price of the product increases, demand for the product decreases. Agree? When the price of the product, इधर ध्यान दो बेटा,
When the price of the product increases, demand for the product decreases. So as with the increase in the price, the demand is decreasing, or can I say the demand is contracting? Agree? The demand is contracting. Hi or na? So whenever there is increase in the price of demand leading to decrease in the quantity demanded, it is termed as contraction of demand. क्या बोलते हैं मुझसे बेटा? Contraction of demand. So what is contraction of demand? Whenever there is decrease in demand due to increase in price. Decrease in demand due to increase in price is called as contraction of demand. What is contraction of demand? Decrease in, increase in price. Increase in price leading to decrease in demand is called as contraction of demand. समझा? Whenever there is decrease in price, there is increase in demand. Law of demand. As the price decreases, demand increases. Hi or na? Yes or no? As the price decreases, demand increases. So whenever demand is increasing, is demand contracting or is demand expanding? The demand is expanding. The demand is expanding. The demand is expanding. So as the price decreases, demand of the product increases. This increase in the demand due to decrease in price of the commodity, my dear friends, is called as expansion, or is also called as extension of demand. Are we clear? Are we clear? Clear? Right? Increase in price leading to decrease in demand is called as contraction of demand. Decrease in price leading to increase in demand is called as expansion of demand. So there are several factors which affect the demand. There are different determinants of demand, and demand is a function of determinants of demand. Agree? उसमें से एक है determinant price. So प्राइस कम होने की वजह से जब डिमांड बढ़ता है तब उसे एक्सपेंशन कहते हैं. जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है तब उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. Now what about other factors? As the income increases, demand increases. As the income decreases, demand decreases. Yes or no? We have seen in case of price of related goods, relationship between price of the commodity and quantity demanded of its substitutes, quantity demanded of its what is the second type? Complementary goods, right? We have seen in the income of the consumer, we have seen in the expectations of the price. Now these are several other factors which determine the demand. For example, let us consider income. Now income of the consumer is one of the determinant of demand. So when we are considering income of a consumer, what we will assume, हमें किसका इफेक्ट समझना है? इनकम बदलने की वजह से डिमांड में क्या फर्क हो रहा है ये देखना है. तो उसके लिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या अज्यूम करना होगा? कांस्टेंट. है ना? सिटेरिस पेरिबस. इकोनॉमिक्स में जब कभी भी हम दो वेरिएबल को अगर समझने की या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि और भी फैक्टर्स अगर उन दो वेरिएबल को इफेक्ट करते हैं, दे हैव टू बी अज्यूम टू बी कांस्टेंट. सिटेरिस पेरिबस, लॉ ऑफ डिमांड याद आया? अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एंड कांस्टेंट. यस और नो? यस और नो? अगर इनकम बदल रही है साथ में प्राइस भी बदल रहा है तो डिमांड में क्या बदला होगा ये तय नहीं है. समझ में आ रही है बात? अगर इनकम बढ़ रहा है और बाइक महंगी हो रही है तो जरूरी नहीं बढ़ते इनकम के साथ डिमांड बढ़े. बढ़ते इनकम के साथ बढ़ती कीमत की वजह से डिमांड कम भी हो सकती है ना? तो अगर सिर्फ इनकम का इफेक्ट समझना है तो हमें प्राइस क्या अज्यूम करना होगा? कांस्टेंट. ऐसे ही हमने एक एक वेरिएबल पढ़ा है ना? राइट. अंडर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड प्राइस एक वेरिएबल है और प्राइस के वजह से जो डिमांड में जो वेरिएशंस आ रहे हैं, द वेरिएशंस विच वी सी भले the variations which we see in the demand, the variations which we see in the demand due to variable price are termed as expansion of demand and contraction of demand. Now what about the variations in demand due to factors other than price?
income of the consumer, expectations of the consumer, blah blah, etc., etc., etc. Propensity to consume, credit facility, rate of interest, population, weather, सब कुछ. For example, let us consider income of the consumer. As the income of the consumer increases, demand for the product increases. As the income of the consumer decreases, demand for the product decreases. हाँ या ना? तो इस वेरिएशन को हम कैसे और क्या बुलाएंगे? So whenever there are changes in demand, what did I say? Whenever there are changes in demand due to factor other than price, these variations in the demand can be termed as increase in demand. क्या बोलते हैं हम उसको? Increase in demand. Due to increase in the income, there will be increase in demand. Agree? Due to increase in income, there will be increase in demand. This variation in demand due to factor income will be called as increase in demand. क्या बोलते हैं हम उसको? Increase in demand. क्या बोलते हैं हम उसे? Increase in demand. क्या बोलते हैं हम उसे? Increase in demand. Now second point. As there is decrease in the income, there is decrease in demand. Now this decrease in demand is due to income factor which is other than price. This variation in the demand, that is decrease in the demand due to factor income which is other than price, is called as decrease in demand. क्या बोला था मैंने उसको? Decrease in demand. So determinants में जब हम डिमांड में वेरिएशन देखते हैं प्राइस की वजह से, they can be classified as expansion of demand और contraction of demand. लेकिन प्राइस को छोड़कर अगर किसी और वेरिएबल की वजह से, किसी और डिटर्मिनेंट की वजह से अगर डिमांड वेरी करता है, अगर वो बढ़ रहा है तो उसे हम क्या बुलाते हैं? इंक्रीज इन डिमांड. अगर वो घट रहा है तो उसको हम क्या बुलाएंगे? डिक्रीज इन डिमांड. आर वी क्लियर विद द ब्रीफ समरी ऑफ द सब 4 कंसेप्ट्स? हाँ या ना? अब एक एक करके सबको समझते हैं. अभी ओके? ओवरव्यू समझ में आया सबको? हाँ बोलो. एक्सपांशन. हाँ, बाकी सगळ्यांसाठी अदरसाठी इन्क्रीज आणि डिक्रीज. प्राइसला सोडून कुठल्याही फॅक्टरमुळे जर डिमांड वाढलं तर दॅट इज इन्क्रीज. प्राइसला सोडून कुठल्याही फॅक्टरमुळे जर डिमांड जर कमी झालं दॅट इज कॉल्ड एज डिक्रीज. प्राइसमुळे डिमांड वाढला तो दॅट इज एक्सपांशन. प्राइसमुळे डिमांड कमी झाला तो दॅट इज कॉन्ट्रैक्शन. प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ा दैट इज एक्सपांशन. प्राइस की वजह से डिमांड कम हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन. प्राइस को छोड़ के किसी और फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ा तो वो है इंक्रीज इन डिमांड. प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड कम हुआ तो दैट इज डिक्रीज इन डिमांड. अभी ओके? ओवरव्यू समझ में आया? अब एक एक चीज समझ में आएंगे, एक एक चीज समझेंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे डिमांड कर्व के अंदर किस तरह के मूवमेंट या किस तरह की शिफ्ट हम देखते हैं इन अलग अलग वेरिएशंस की वजह से. ये जो वेरिएशंस है एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, इन सभी के वजह से डिमांड कर्व में एक तो मूवमेंट्स होते हैं या डिमांड कर्व शिफ्ट लेती है. तो वो कैसे शिफ्ट है और वो कैसे मूवमेंट है ये अभी हमें एक एक करके देखना है. ओवरव्यू समझ में आया? और किसी कोई प्रश्न है? और किसी कोई डाउट है? यस और नो? डज एनीवन हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? चलिए समझने की कोशिश करते हैं. स्टार्टिंग विथ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. Expansion and contraction of demand are due to variable price, that is price of the commodity, right? It is यहाँ पे directly दिया है, it is called as expansion of demand. When as the price decreases, demand increases. As the price decreases, demand increases. This increase in the demand is called as expansion of demand. Where there is decrease in demand due to increase in price. Where there is decrease in demand due to increase in price, it is called as contraction of demand. So जो मैंने अभी बताया उसी को वहां पर हमने फिर से देखा है. Is it okay and fine? Is it okay and fine? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes or no? Right? अब देखो थोड़ा सा मैं अलग से डायग्राम आपको बताता हूं. ठीक है? अब ये प्राइस है मेरा. अब ये मेरा प्राइस है, ये मेरा क्वांटिटी डिमांडेड है. हाँ या ना? हो कि नहीं?
हो कि नहीं? राइट, नाउ प्लीज फोकस। पहले हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की। व्हाट हैपेंस इन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड माय डियर फ्रेंड्स? एज द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड increases. Let's say the price is decreasing from 10, 8, 6, 4, 2. Higher na? Quantity demanded. Now this is increasing from, let's say, 10, 20, 30, 40 and 50. Higher na? 10, 20, 30, 40 and 50. Now on the basis of this, now we have seen whenever there is increase in demand due to decrease in price, it is called as expansion of demand. है ना? और जब हम expansion की डिमांड कब निकालेंगे, राइट, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे क्या होगा, प्राइस, वाई एक्सिस पे क्या होगा, प्राइस। यस और नो? सो जब हम एक्सपेंशन की जो कर्व बनाएंगे तो कर्व कैसे बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी। है ना? राइट। अब एक्सपेंशन को तुम ऑब्जर्व करो, ऊपर क्या है, सबसे ऊपर क्या है, 10, 10, 10। सो प्राइस जब ये 2, 4, 6, 8 और 10, तो पहला पॉइंट ये इधर है, राइट, है ना? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और पांचवा है, राइट। अब एक्सपेंशन की इस कर्व को तुम ऑब्जर्व करो, क्या हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं? ऊपर से नीचे आ रहे हैं। एक्सपेंशन नीचे क्या है, ये क्वांटिटी है, ये क्या है, हमारी क्वांटिटी है। तो इस तरफ नीचे की तरफ आएंगे तो वैसे वैसे हमारा डिमांड एक्सपांड होते जा रहा है ना? है ना? सो कैन आई से इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व? यस और नो? अभी हम 10 से 2 की तरफ आ रहे हैं, 10 से 2 की तरफ जब आ रहे हैं तब नीचे से क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है या ना? 10 से 2 की तरफ जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, मेरा बढ़ते जा रहा है, हाँ या ना? यस और नो? राइट। नाउ do you have two curves or we have a single demand curve? We are having a single demand curve, but how is the movement on the demand curve? It is downward. It is downward. So can I say whenever there is decrease in demand, whenever there is decrease in price, there is increase in demand. Whenever there is decrease in price, there is increase in demand. This increase in demand is called as expansion of demand, and expansion of demand leads to downward movement on the same demand curve. Are we okay? Are we okay? तो हमने क्या समझा? Whenever there is decrease in price, there is increase in demand. With a decrease in price, there is increase in demand. This decrease in price leading to increase in demand is called as expansion of demand, and expansion of demand leads to downward movement on the same demand curve. Does everyone agree with me? Now let's take an example of contraction. What happens in contraction of demand? As the price of the product increases, demand decreases. This decrease is called as contraction of demand. Now let's see. फिर से वही बना रहे हम, प्राइस एंड क्वांटिटी। यस और नो? अब यहां पे उल्टा जाएंगे हम, 2, 4, 6, 8 और 10, है ना? 2, 4, 6, 8 और 10। जब 2 था तब क्वांटिटी कितनी बेटा? 50, 50, 40, 30, 20 एंड 10। हाँ या ना? हाँ या ना? थोड़ा सा वो जो नोट्स बनाया है उसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का वो जो एग्जांपल दिया है थोड़ा सा उसमें मिस किया हुआ है। मेरा ये लेक्चर यूट्यूब पे देख के इसके हिसाब से ही तुम तुम्हारे नोट्स बना लेना एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के, ठीक है? ऐसा ही एग्जांपल ले लेना। नाउ सी, ऑब्जर्व, ये बन गया मेरा डिमांड शेड्यूल, हाँ या ना? अब डिमांड शेड्यूल के हिसाब से हमने अब कर्व ड्रॉ करना बेटा। एक्स एक्सिस पे क्या है? क्वांटिटी। वाई एक्सिस पे क्या है? प्राइस। अब बोल बेटा सबसे पहले क्या है? 2, ये क्या है? 2, 6, 8 और 10। तो पहला कितना है? 50, 40, 30,
20 और 10। तो ये 2 है, यहाँ पे आया, फिर दूसरा यहाँ आया, फिर तीसरा यहाँ पर आया और चौथा यहाँ आया। तो अब हम कॉन्ट्रैक्शन में ऊपर से नीचे आ रहे कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं? नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? एंड द मूवमेंट इज ऑन द सेम डिमांड कर्व। एक्सपेंशन में कैसे आ रहे थे? ऊपर से नीचे आ रहे थे ना। कॉन्ट्रैक्शन में अपन नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हाँ या ना? सो कैन आई से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड लीड्स टू, ए भाले तू बुक्की खातो सरळ बस आता, शेवटची वॉर्निंग तुला. उठ तिथून, उठ 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 लवकर, उठ 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 पटपट, चल फटपट, इथे येऊन बस. तू मोबाईल काय लागतो तो? इथं बघत नाही, नोट्स बघतो म्हणे येडे. अभी कॉन्ट्रैक्शन तो बहुत मार खाएगा बेटा तू. हाँ, पहले इतना है और मार मार के तो बना दूंगा फिर. यस यस प्लीज. देखो सीरियस डिस्कशन कंसेप्ट का है, मेरे को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए. जब मजे करने का मजे का कंसेप्ट के बीच में अगर तुम डिस्टर्ब करोगे ना, फिर मेरी लिंक टूटती है. अभी देखो हम कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्शन में कैसे चल रहा है? वी आर मूविंग अपवर्ड ऑन द सेम डिमांड कर्व. यस और नो? अग्री करते हैं सबकी? कॉन्ट्रैक्शन में हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं सर. यस. So can I say whenever there is increase in price, there is decrease in demand? सगळ्याला काही एक एक नाव उगा ते लक्ष द्या म्हणून. जेव्हा मी शिकवत असतो इथे लक्ष द्यायचं. Whenever there is increase in price, there is decrease in demand. Whenever there is increase in price, there is decrease in demand. And this decrease in price, this decrease in demand is called as contraction of demand. And under contraction of demand we have upward movement on the same demand curve. समझा क्या? समझा क्या? तो मेरे पीछे बोलो, सब बोलेंगे मेरे पीछे. चलो बोलो. कहां से पहले? एक्सपेंशन से शुरू है ना. हाँ. डिक्रीज इन प्राइस leads to increase in demand. Decrease in price leads to increase in demand. This increase in demand is called as expansion of demand. And expansion of demand leads to upward movement on the same demand curve. सही है ना? क्या है फिर बेबी? डाउनवर्ड है. तो बोलो मेरे में पीछे, सही बोलो फिर. राइट. डिक्रीज इन प्राइस leads to increase in demand. Decrease in price leads to increase in demand. This increase in demand is called as expansion of demand. But baby, expansion of demand leads to downward movement on the same demand curve. On the same demand curve. On the same demand curve. Expansion of demand, downward movement on the same demand curve. Okay. Increase in price leads to decrease in demand. Increase in price leads to decrease in demand. This decrease in demand is called as contraction of demand. But baby, contraction of demand leads to upward movement on the same demand curve. Upward movement on the same demand curve. Yeah, baby? Right, baby? Okay? Right. So expansion of demand leads to downward movement on the same demand curve, and contraction of demand leads to upward movement on the same demand curve. Are we clear with two concepts? खत्म. यहाँ concept खत्म हो गया.
देखो अब यहां पर जो हमने ग्राफ निकाला, डिड वी हैव अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व और द मूवमेंट्स वर ऑन द सेम डिमांड कर्व? सो ये रूल से हमें ये समझ में आया, both in case of expansion and contraction we don't see any shift in the demand curve. We don't see any shift in the demand curve. We have the movements on the same demand curve. As in case of expansion there is downward movement, as case of contraction there is upward movement. Yes or no? Right. Now rules. In case of expansion and contraction of demand, there is no shift in the demand curve. There are movements along the same demand curve. In case of expansion of demand, there is downward movement on the same demand curve. In case of contraction of demand, there is upward movement in the same demand curve. Okay. Is it okay? Variations in demand have to be understood with respect to changes in the price or with respect to other factors. With respect to other changes in price, it is expansion, it is contraction. We have done with both heading. Now let's look into what about other factors. If the demand changes or if we see variations in demand due to factors other than price, what is increase in demand and what is decrease in demand? Is it okay? देखते हैं. Right. चलो आ जाओ. Now increase and decrease in demand. Increase or decrease in demand is now with respect to determinants of demand that are income of the consumer, price of related good, taste and preference, etc. that are factors other than price. All the determinants of demand other than price. Now increase in demand. Rise in demand due to factor other than price is called as increase in demand. Price is constant. Increase in demand leads to rightward shift in the demand curve. It leads to rightward shift in the demand curve. Decrease in price. Decrease in price. Fall in the demand due to factors other than price is called as decrease in demand. Price is constant. Decrease in demand has led to leftward shift in the demand curve. Right? यहाँ पे ये बनाया है मैंने, तो इसको बनाने से अच्छा मैं अलग अलग ही समझाता हूँ. थोड़ा सा मिक्सिंग की है, तो मिक्सिंग के अंदर एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज एक ही डायग्राम में बनाया तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है. तो थोड़ा सा मैं अलग अलग आपको समझाता हूँ. सबसे पहले हम समझेंगे इंक्रीज. What will we understand? Increase in demand. Yes or no? Now what is the situation? Whenever there is increase in demand due to factors other than price, whenever the quantity demanded increases due to factor other than price, then it is termed as increase in demand. इस variation को अपन क्या बोलते हैं? Increase in demand. Is income of consumer a factor other than price which also determines demand? Yes. Let's consider an example. Price situation A, B, C and D. Does everyone agree that price has to be constant because we are trying to analyze the changes in demand due to factor that is income. So in every scenario the prices of wheat will be 20 rupees per kg. High na? High na? So price here is constant. Now we are trying to see the changes in demand due to changes in the income. Let's consider income. Let's consider income. Let us now consider income of the consumer. 10,000, 20,000, 30,000 and 40,000. 10,000, 20,000, 30,000 and 40,000. High na? Yes or no? Right. So quantity demanded 10, 20, 30 and 40. Agree? High na? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Right. So now सिचुएशन ए जो है उसकी डिमांड कर्व हम बनाएंगे पहले. अभी मेरा ग्राफ है, ठीक है. ग्राफ पे नीचे की तरफ क्या आता है? क्वांटिटी, और इधर क्या आता है? प्राइस. बराबर.
So when the price is 20, quantity demanded is 10. When the price is 10, 20, 30 and 40. Yes, this is 10, this is 20, this is 30, this is 40. Agree? Agree or not? Right? So when the price is 20, when the price is 20, how much is the quantity demanded? 10. So when the price is 20, quantity demanded is 10. So this is my demand curve. This is my demand curve for A situation. This is my demand curve for A situation. This is my demand curve for A situation. Yes or no? Right? Now what happens in B situation? Is the price changing? Is the price changing? Price is still 20. Price is still 20. But there is change in the income of the consumer. What is happening to the income? Income is increasing. With the increase in the income, there is increase in the demand. Now look at situation number 2. 20,000 and 20. Right? So price उतना ही है, 20 ही है, लेकिन अब क्वांटिटी कितनी है? 20 है. अब B सिचुएशन की ये मेरी सेम डिमांड कर्व बनी. Now see, this was my original demand curve for A situation. Now this is my demand curve for B situation. So what is happening to the original demand curve? अरे बाबा, A सिचुएशन ओरिजिनल सिचुएशन है, बेस, जहां पे पहले मेरी इनकम कितनी थी? 10,000 रुपए. दाम क्या था चीज का, वीट का? 20 रुपीज. तब मैं कितना डिमांड कर रहा था? 10 क्वांटिटी. बरोबर. ये मेरा ओरिजिनल डिमांड बना, तो उसके हिसाब से मैंने ये मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व DD बना ली. इज इट ओके? जब हम सेकंड सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं, जब हम सेकंड सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं, सो व्हाट इज हैपनिंग इन द सेकंड सिचुएशन? There is increase in income. Due to increase in income, there is increase in demand. So the price is 20 still. अभी भी प्राइस कितना है? 20 है, और क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 20 है. So अब मेरा ये जो कर्व बनेगा, अब ये बनेगा मेरा नया डिमांड कर्व. This will be my new demand curve. This will be my new demand curve. As the prices are still same, I'll have to draw a new demand curve. There is expansion. जब एक्सपांशन होता है तो डिमांड कर्व आगे की तरफ सरकती है, लेकिन प्राइस सेम होने से सरक सकता है क्या? नहीं. इसलिए उसको पूरा शिफ्ट होना पड़ेगा. एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर प्राइस चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से डिमांड चेंज हो रहा है. इसीलिए सेम डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट है. यहां पे प्राइस चेंज हो रहा है क्या? नहीं, प्राइस कांस्टेंट है. तो अगर मैं सभी ABCD को ऐसा कर दूं, तो क्या ऐसी डिमांड कर्व बना सकता हूं क्या मैं? कैन द डिमांड कर्व कैन बी ड्रॉन लाइक दिस? नो. I will have to draw a different demand curve for every situation. I will have to draw a different demand curve for every situation. अब यहाँ पे किसी को लगेगा सर ने ऐसा क्यों किया? सर ने इससे अच्छा एक कर लेते कि पहले वाली सिचुएशन यहाँ पे प्लॉट हो गई, दूसरी सिचुएशन यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ. ऐसी डिमांड कर्व कभी देखी है? नहीं. तो इसका मतलब क्या है? डिमांड कर्व शिफ्ट ले रही है. डिमांड कर्व कंपल्सरी कैसे होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये मेरा A सिचुएशन है, ये मेरा B सिचुएशन है, ये मेरा C सिचुएशन है, ये मेरा D सिचुएशन है. क्या मैं ऐसे कर्व को डिमांड कर्व बोल सकता हूं? नो. व्हाई इज द डिमांड कर्व? हाउ इज द डिमांड कर्व? डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. राइट. तो अब बेटा, तो ग्राफ के हिसाब से ये मेरा प्राइस है. प्राइस तो तीनों ABCD सिचुएशन में सेम है. 20. देखो यहाँ पे 20, 20, 20, 20. राइट. क्वांटिटी 10, 20, 30, 40 है. तो अगर ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, तो फिर ये हुआ मेरा A सिचुएशन, ये हुआ मेरा B सिचुएशन, ये हुआ मेरा C सिचुएशन, और ये हुआ मेरा D सिचुएशन. कैन आई ड्रॉ डिमांड कर्व स्ट्रेट? क्या ऐसी डिमांड कर्व, सीधी डिमांड कर्व निकाल सकता हूँ क्या मैं? नहीं निकाल सकता. इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हर एक सिचुएशन में अलग अलग डिमांड कर्व बनानी पड़ेगी. सो पहली वाली जो ओरिजिनल डिमांड कर्व थी उसको मैं रेड से निकालता हूं. ये मेरी ओरिजिनल डिमांड कर्व थी. ये मेरी ओरिजिनल डिमांड कर्व थी. फिर मेरे इनकम में बदला हुआ, मेरी इनकम बढ़ी है जिसकी वजह से डिमांड बदला है. प्राइस बदला है क्या? नहीं, प्राइस वहीं पे है. तो बी सिचुएशन में मेरी ये हो गई डिमांड कर्व, नई डिमांड कर्व. समझा? समझा क्या? फिर इसके बाद तीसरे सिचुएशन में और इनकम बढ़ती है तो और डिमांड बढ़ रहा है, और इनकम बढ़ रही है तो और डिमांड बढ़ रहा है.
तो ये होगी मेरी तीसरी डिमांड कर्व, अग्री। फिर उसके बाद और मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरी इनकम और बढ़ रही है तो मेरी डिमांड और बढ़ रहा है, प्राइस बदल रहा है क्या, प्राइस वहीं पे है, तो ये मेरी बन गई डिमांड कर्व। तो ये हो गया सिचुएशन ए की डिमांड कर्व, ये बन गई बेटा मेरी सिचुएशन बी की डिमांड कर्व, और ये बन गई मेरी सिचुएशन सी की डिमांड कर्व, और ये बन गई मेरी सिचुएशन डी की डिमांड कर्व। These are the 4 different demand curves we have for 4 different situations. As the price is constant, we will have different demand curve for different situations. Are all the demand curves right now? सब डिमांड कर्व राइट है। तो पैटर्न देखो, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, यस और नो, यस और नो। बट जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, सिचुएशन 1 से लेके 1 से मूव करते वक्त 2, 2 से 3, 3 से 4, कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट है बेटा, कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट है, राइटवर्ड। और हम अब सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट ले रहे हैं या पूरी डिमांड कर्व शिफ्ट ले रही है, पूरी डिमांड कर्व क्या ले रही है बेटा, शिफ्ट ले रही है। ओरिजिनल डिमांड कर्व ये लाल वाली थी, ए वाली, उसने राइटवर्ड शिफ्ट लिया बी को, जैसे इनकम और बढ़ी तो उसने शिफ्ट लिया सी को, और फिर बाद में लिया डी को। सो ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऊपर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान दो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, इधर मूवमेंट है राइटवर्ड, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो कैसा मूवमेंट है, राइटवर्ड। सो कैन आई से whenever there is increase in demand due to factor other than price, it is called as increase in demand, and this increase in demand leads to rightward movement in the rightward shift in the demand curve. Is it okay? Is it okay? अब इसका उल्टा जाने का अपने को डिक्रीज को, तब हमने क्या देखा, इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड। अब हम क्या देखेंगे, डिक्रीज इन इनकम लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड, बरोबर। ये वाला पार्ट समझ में आया सबको, इंक्रीज इन डिमांड समझ में आया। सो इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इंक्रीज इन डिमांड की वजह से क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। क्या एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है, नहीं, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट होते हैं। एक्सपांशन में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट होता है। क्या हमारे पॉइंट ऐसे सीधे आ रहे थे क्या, नहीं, वो प्रॉपर एक कर्व में आ रहे थे ना, जिसे हमने एक डिमांड कर्व बनाई, तो एक्सपांशन में डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही थी, कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही थी। अभी जो मैंने 4 पॉइंट बनाए, क्या ऐसी वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस डिमांड कर्व हो सकती है क्या, नहीं, डिमांड कर्व कैसी होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दैट मींस फॉर एवरी सिचुएशन आई नीड टू ड्रॉ डिफरेंट डिमांड कर्व। जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड कर्व क्या ले रही है, राइटवर्ड शिफ्ट ले रही है। समझा, समझा सबको, किसी को कुछ पूछना है? कमिंग टू द लास्ट पॉइंट फॉर द डे, लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। Now, decrease in demand. To the last point, yes, please pay attention. Decrease in demand. Whenever there are variations in demand or decrease in demand due to factor, whenever there is reduction in the quantity demanded due to factor other than price, it is called as decrease in demand. ये मोबाइल खोल लो, इकडे लक्ष दे. This is called as decrease in demand, right? अब ये वाले पार्ट में क्या हो रहा था बेटा, इनकम बढ़ रही थी, डिमांड बढ़ रहा था। अब इस वाले पार्ट में क्या होगा, पहली बात तो बोले बेटे ये ले लो, प्राइस। प्राइस क्या है, कांस्टेंट। ए सिचुएशन, बी सिचुएशन, सी सिचुएशन, डी सिचुएशन, तीनों सिचुएशन में प्राइस क्या है, चारों सिचुएशन में प्राइस क्या है, कांस्टेंट। हाँ या ना, ना इनकम। इधर क्या लिया था हमने, 10, 20, 30, 40। अब यहां उल्टा जाएंगे, 40, 30, 20 and 10. A quantity demanded 40, 30, 20 and 10. हाँ या ना? हमने इधर वाले डायग्राम में पहली कर्व कौन से कलर से बनाई है,
राइट से। तो चलो अब हम क्या करते हैं, वापस से ये साइड, अब ये कौन सा बन गया हमारा, इंक्रीज इन डिमांड। एक मिनट यहां लिख देता हूं तो कंफ्यूज ना हो। ये क्या है हमारा, इंक्रीज, ये क्या है हमारा, इंक्रीज, बरोबर। अब हम राइट साइड में डिक्रीज का डायग्राम निकालते हैं। अब हम राइट साइड में क्या करते हैं, हमारा डिक्रीज का डायग्राम निकालते हैं। अब ये साइड क्या बन रहा है हमारा, डिक्रीज। इसको तुम अच्छे से फेयर कर लेना। अब ये साइड क्या बन रहा है बेटा, डिक्रीज, हाँ है ना। तो अब पहला सिचुएशन क्या है, ये देखो पॉइंट तो ये है हमारे, ये 20 के हिसाब से पॉइंट 1 2 3 और 4। अब ऊपर ऑब्जर्व करो, इनकम 40,000, क्वांटिटी 40। तो पहली कर्व कौन से कलर से थी, रेड से। तो मेरी रेड कलर की कर्व ये क्या बनी, मेरी कर्व नंबर ए, हाँ या ना। फिर उसके बाद इनकम कम हुआ, डिमांड कम हुई। कर्व कौन सी बनी थी मेरी, बी। बी के कलर क्या है, ब्लू। तो ये क्या हुआ मेरा बी कर्व, जो कर्व क्या है, ब्लू, बी। इज इट ओके, इज इट ओके गाइस, राइट। फिर इनकम और कम हुई, फ्रॉम 30,000 इट रिड्यूस टू 20,000। अब मेरी जो नई कर्व बनाऊंगा मैं वो कैसे बनाऊंगा बेटा, ग्रीन कलर, जो है मेरी सी, हाँ या ना, राइट। अब और फाइनली जब वो 10,000 हो जाती है तो मेरी डिमांड और कम होकर क्या हो जाती है, 10। अग्री, यस और नो। तो अब कर्व कौन से बनाऊंगा बेटा मैं, पर्पल। तो ये है मेरी डी। तो पैटर्न देखो बेटा, इंक्रीज इन डिमांड में पैटर्न क्या था, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब यहां पे ए से बी, बी से सी, सी से डी। पहले वाले में किस तरह, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो इधर क्या होगा, राइटवर्ड मूवमेंट था, राइटवर्ड शिफ्ट था। अब यहां पे क्या हो रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। आई एम मूविंग लेफ्टवर्ड। देखो तो एरो लगाओ, ए से बी, बी से सी, सी से डी। So can I say whenever there is decrease in demand due to factor other than price, it leads to leftward shift in the demand curve. Is it okay? Is it okay? So क्या समझा बेटा हमने? In the variations of demand, whenever there is changes in demand due to factor other than price, an increase in demand due to factor other than price is called as increase in demand. This increase leads to rightward shift in the demand curve. This increase leads to rightward shift in the demand curve. Whenever there is decrease in demand due to factor other than price, it is called as decrease in demand. This decrease in demand leads to leftward shift in the demand curve. So this is all we have in the variations of demand. So अगर इस पूरे 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 ये जो पार्ट है, पूरा 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 जो ये मेरा पार्ट है, जिसे हम कहते हैं वेरिएशंस ऑफ डिमांड, क्या कहते हैं बेटा उसको अपन, वेरिएशंस ऑफ डिमांड। अगर इस वेरिएशंस ऑफ डिमांड का अगर मैं चार्ट बनाता हूं, अगर इस वेरिएशन ऑफ डिमांड का अगर मैं चार्ट बनाता हूं, तो इस चार्ट के मुताबिक ये हो गया मेरा वेरिएशन ऑफ डिमांड। इस वेरिएशन ऑफ डिमांड में दो फैक्टर से चेंजेस होंगे, एक होगा प्राइस, यस प्लीज मेंटेन साइलेंस, ये होगा अदर, प्लीज मेंटेन साइलेंस। अगर आप जल्दी जाना चाहते हो शांति बनाए रखो। एक है प्राइस, दूसरा है अदर फैक्टर्स, हाँ या ना, यस। वेरिएशन डिमांड ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अग्री, राइट। प्राइस की वजह से क्या होता है बेटा, एक्सपेंशन। दूसरा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, हाँ या ना। एक्सपेंशन से क्या होता है, डाउनवर्ड, yes friends. So variation of demand can be with respect to price, it can be with respect to other factors. With respect to price, it is expansion of demand, or it can be contraction of demand. Whenever we say expansion of demand, we see
downward movement. We see downward movement. With case of contraction, we saw upward movement. We saw upward movement. Yes or no? Yes or no? But in both the scenario, the movements are on the same demand curve. They are on the same demand curve. For today's lecture, rather than referring the PDF, please refer my lecture and video to write down the notes. Right? जिस तरह से मैंने अभी क्लास में लिखा है इसी तरह से सब चीजें आपको लिखना है. वो नोट्स का अगर तुम देखोगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे तो बेहतर है ये जो मैंने जिस तरह से पढ़ा है इसी को तुम रेफर करो. इज इट ओके? राइट. चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए. सो अदर फैक्टर्स का अगर हम वेरिएशन देखेंगे, दे कैन बी अंडरस्टूड एज increase in demand. Yes or no? Increase in demand. Increase in demand. Another is decrease in demand. Decrease in demand. हाँ या ना? Yes or no? Increase in demand leads to rightward shift. Rightward shift in demand curve, and decrease in demand leads to leftward shift in demand curve. Yes or no? So the variation in demand can be understood with respect to price or other factors. Due to price, there is expansion of demand or contraction of demand. Expansion of demand leads to downward movement on the same demand curve. Contraction of demand leads to upward movement on the same demand curve. Due to other factors, there is increase in price or decrease in price. Increase in price leads to rightward shift in the demand curve, and decrease in price leads to leftward shift in the demand curve. Thank you so much. Go home, stay safe. Thank you.